Welcome to my channel Math World. If you like my video, please subscribe it. In this video, I am going to solve miscellaneous exercise on chapter 1 of NCERT Mathematics of class 11. So, come to the question first. First question of this exercise is, this question we have to check which set are subset of other set or not. So, our first set is A, and our first set is A equal to x such that x belongs to R and x square minus 8x plus 12 equal to 0. For this, we have to solve this equation first. X square minus 8x plus 12 equal to 0. This implies x square minus 6x minus 2x plus 12 equal to 0. This implies x minus 6 minus 2 x minus 6 equal to 0. This implies x minus 2 x minus 6 equal to 0. This implies x equal to 2 and 6. So 2 and 6 both are real number. So x equal to 2 and 6. Our B is 2, 4, 6 and C is 2, 4, 6. All are even number, all even natural number. And D has only one element, it is 6. So in A we have only two elements and 2 and 6, and it is belongs to B. So A is subset of B. Similarly, all the element of A is also belongs to C. Also belongs to C. So it is also subset of C. B has 3 elements, but A has 2 elements. So it can't be subset of A. Now we check B is subset of C or not. Obviously, all the element of B is in C. So B is subset of C. Number of element in B is 3 and number of element in D is 6. So D can't be. So B can't be subset of D. Now C is biggest subset of the given set, biggest set of the given set. So C can't be subset of any set, given set. Now we have to check for D. D has only one element and its element is 6. So we can check for all other three given set. Here D has only one element 6 and 6 is also in A. So D is subset of A. Similarly, D is also subset of B and D is also subset of C. Right? Now come to the next question. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड फॉल्स है. अगर ट्रू होगा तो प्रूव करेंगे, फॉल्स होगा तो एग्जाम्पल दें. ठीक, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि x बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू B, this implies x belongs to B. So here A equal to 1 कर लेते हैं
b equal to 1 and 2. Here obviously 1 is belongs to a, okay, and a is belongs to b, but what? A, one element of a is not belongs to b. So this statement is false. Our second statement is a subset of b and b lies in c तब कहता है कि a जो है वो सबसेट होगा c का। तो a को हम ले लेते हैं 1, b सबसेट है तो 1 2, b जो है वो लाइज कर रहा है c में, तो c इक्वल टू 1 2 and 5, right? Now here clearly a is subset of b and b lies in c, but a जो है वो सबसेट नहीं है किसका? c का। So this statement is false. Our third statement is what is our third statement? A belongs to b, b belongs to sorry, a is subset of b, b is subset of c, a is subset of c. A is subset of b and b is subset of c. This implies a is subset of c. Obviously it is true, x belongs to a. This implies any x belongs to a. This implies what? This implies x belongs to b. Why? A is subset of b. This implies x belongs to c. Why? C is subset of b is subset of c. This implies thus any x belongs to a. This implies x belongs to c. Hence a is subset of c. Right? It is true. Now come to the another question. Our fourth question is a is not subset of b, b is not subset of c, then a is not subset of c. Our fourth, a is not subset of b and b is not subset of c, as a is not subset of c. A, right? Now फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये फॉल्स है स्टेटमेंट, एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे फॉल्स है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, ओके, c इक्वल टू 1 5. Clearly here a is not subset of b and b is not subset of c, but a is subset of c. So this statement is false. Fifth number, x belongs to a is not subset of b, x belongs to b. X belongs to a
and A is not subset of B. This implies X belongs to B. Clearly, A equal to 1, B equal to 2. Clearly here, 1 is belongs to A. A is not subset of B, but 1 is not belongs to B. So this statement is false. 6 number, A is belongs to B, X is not belongs to B, X is not belongs to A. A is subset of B, X is not belongs to B. This implies X is not belongs to A. Right? A is belongs to say B, so every element of A is in B, and given that X is not belongs to B, so X must not be belongs to A. So our this statement is, अगर इसका हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट बी में है, ओके, तो बी में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो तो ए में ऑलरेडी नहीं ही होगा. तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि गिवन दैट A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C. So we have to prove that B equal to C. तो B इक्वल टू C को हमको प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि B में एक कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, उसको C में दिखा देंगे, तो क्या हो जाएगा, B जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा C का, एंड हम C को में कोई एलिमेंट ले लेंगे, उसको दिखा देंगे B में, तो हो जाएगा C सबसेट हो जाएगा B का. तो दोनों का दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा. मतलब हमें क्या करना है कि इसके लिए हम दिखा देते हैं क्या करेंगे कि फॉर एनी ले लेंगे x बिलोंग्स टू b, और इसको दिखा देंगे कि x बिलोंग्स कर रहा है c में. फिर हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब हो गया b इज सबसेट ऑफ c. और फिर ले लेंगे हम एनी x बिलोंग्स टू c, उसको दिखा देंगे x बिलोंग्स करता है b में, तो इसका मतलब हो जाएगा c जो है सबसेट है b का, राइट. और उसके बाद तो b सबसेट होगा c का एंड c सबसेट होगा b का. दिस इंप्लाइज हो जाएगा b इक्वल टू c, राइट. तो यही काम यहाँ करेंगे हम. तो लेट कर लेते हैं, लेट x b एंड
arbitrary element in B। तो केस फर्स्ट कहता है कि एक केस बनेगा कि x बिलोंग्स करेगा ए में, ठीक है। हम ये भी कंडीशन लेके चल रहे हैं, x ए में बिलोंग्स करेगा तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए, x belongs to B and x belongs to B. This implies x must be belongs to A intersection B. Right? By definition of intersection, x belongs to A intersection C. क्यों क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि A intersection B इक्वल टू A intersection C यहाँ पर है ये कंडीशन। तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स करेगा A में एंड x belongs to C. This implies x belongs to C. So thus क्या हम प्रूव कर दिए, any x belongs to B, this implies x belongs to C. So what? B is subset of C, right? So B is subset of C. केस सेकेंड में x बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा है A में, ठीक है। x is not belongs to A and x belongs to B. This implies x must be belongs to A union B में, राइट। बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन से लिखे हैं तो x बिलोंग्स कर रहा है A यूनियन C में। क्यों? क्योंकि A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू C। वाई? क्योंकि x बिलोंग्स नहीं कर रहा है A में, ये आवर केस है। तो thus any x belongs to B, this implies x belongs to C. So what? B is subset of C. इसको हम यहाँ पे मिटा देते, तो यहाँ हम प्रूव कर दिए कि हो गया। चलिए, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, अब हम सिमिलरली we can prove that क्या प्रूव कर देंगे हम सिमिलरली कि C जो है वो सबसेट होगा B का। Hence from फर्स्ट एंड सेकेंड क्या निकल जाएगा, B इक्वल टू C। प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारों स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज सेकेंड कर देंगे, फर्स्ट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज थर्ड कर देंगे प्रूफ, और फर्स्ट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज फोर्थ स्टेटमेंट को कर देंगे। तो हमारा सारा कंडीशन इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसके लिए हम पहला प्रूफ करते हैं फर्स्ट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज क्या सेकेंड। तो इस कंडीशन को हम लेके चलेंगे और इस कंडीशन को प्रूफ कर देंगे। तो लेके चलते हैं A इज सबसेट ऑफ B। सो
क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए every element of A is in B, right? So every element of A, this means there is there is no element left in A which is not in B. So A minus B equal to 5. So हमारा प्रूफ हो गया 10 फर्स्ट implies what? सेकेंड। अब हम सेकेंड को लेके चलेंगे, फर्स्ट को प्रूफ करेंगे। तो हमारा है a माइनस बी इक्वल टू 5। सो नो एलिमेंट इन A which is not in B. This means every element of A is in B. So what? A is subset of B. Thus second implies first. तो first second, from first and second क्या निकल गया? फर्स्ट implies and implies second। हो गया। अब हम प्रूव करेंगे फर्स्ट implies थर्ड। अब क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे फर्स्ट implies and implies थर्ड, राइट? तो फर्स्ट इम्प्लाई A यूनियन B इक्वल टू B। क्या प्रूव करेंगे? कि इसका मतलब है कि हमें प्रूव करना है A is subset of B, this implies and implies A union B equal to B, राइट? तो हम लेके चलते हैं क्या? एनी नहीं, लेट X be an arbitrary एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B का X जो है कोई भी एलिमेंट है, ठीक है? तो यहाँ क्या हो सकता है? X या तो A में होगा या क्या होगा? A में होगा या A में नहीं होगा या फिर B में होगा, यही हो सकता है। X A में भी हो सकता है, B में भी हो सकता है या दोनों में हो सकता है। तो यहाँ हम समझते हैं अगर X A में होगा
तो वो बी में होगा ही। अगर x बी में नहीं होगा, अगर x बी में नहीं होगा तो क्या होगा? वो ए में भी नहीं होगा, ए में भी नहीं होगा, राइट। x अगर ए में होगा तो x बी में होगा ही। x ए में नहीं होगा, x ए में नहीं होगा तो क्या होगा? x पक्का बी में होगा ही। क्यों? क्योंकि ए में अगर नहीं है तो यूनियन में आया, तो इसका मतलब क्या है कि बी में है। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन है? दो कंडीशन। x या तो ए में होगा या तो ए में नहीं होगा। और बी में नहीं होने का मतलब ही है कि ए में भी नहीं होगा तो यूनियन में होगा ही नहीं, बेसली। तो ये कंडीशन हमारा नहीं हो सकता। ये दोनों कंडीशन केस आ सकता है, ठीक है। तो हमारा पहला केस है x ए में आएगा। x अगर ए में आएगा तो क्या होगा? x कहाँ है? x बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स कर रहा है ए में। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी, राइट। क्यों? क्योंकि ए जो है सबसेट है बी का, राइट। x तो ऑलरेडी बिलोंग्स कर ही रहा है। x कहाँ बिलोंग्स कर रहा है? x बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी में, राइट। इसलिए तो ये कंडीशन आया। अब केस फर्स्ट हो गया। अब आते हैं केस सेकंड है। केस सेकंड है हमारा x बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए में, x बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी में, एंड x नॉट बिलोंग्स टू ए में। इसका क्या मतलब है? x ए में नहीं है, x ए यूनियन बी में है, इसलिए x कहाँ बिलोंग्स करेगा? बी में निश्चित रूप से बिलोंग्स करेगा। कहाँ से आया? बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन। सो thus x belongs to A union B, this implies x belongs to B, right? Hence A union B is subset of B. क्वेश्चन नंबर क्या? 3। अब हम क्या करेंगे कि B को लेके चलेंगे और A को प्रूव करेंगे। A यूनियन B में एलिमेंट है, कोई भी यहाँ से एलिमेंट बी में से लेके चलेंगे और ए में प्रूफ कर दिखा देंगे, तो हो जाएगा कि हमारा सेट होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट आर्बिट्रेरी बी, बी का कोई भी एलिमेंट है। तो यहाँ दो ही केस हो सकता है। यहाँ भी पहला केस कि x जो है वो a में होगा। अगर x a में होगा तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, this implies, obviously implies, x belongs to A union B, राइट। अब दूसरा केस होगा, क्या होगा कि x belongs to
नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर x ए में नहीं है तो क्या होगा? x इज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x इज बिलोंग्स टू b. दिस implies x must be belongs to a union b, right? बाय डेफिनेशन ऑफ एक में तो है तो ऑब्वियसली इसमें बिलोंग्स करेगा। तो हम लेके चले कि x b में नहीं, b में है तो x a में होगा। thus क्या हो गया? b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। क्वेश्चन नंबर व्हाट? यहाँ क्या था? थर्ड था, यहाँ फोर्थ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। एंड फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या निकल गया हमारा? b जो है इक्वल टू है किसके? a यूनियन b के, राइट? अब हम लेके चलेंगे कि इसका मतलब हो गया hence क्या? फर्स्ट इम्प्लाइज थर्ड। अब हम क्या करेंगे? इस कंडीशन को लेके चलेंगे और इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। मतलब a यूनियन b इक्वल टू b लेके चलेंगे और a को a इज सबसेट ऑफ b प्रूव करेंगे। तो हम लेके चलते हैं क्या कि a यूनियन b इक्वल टू b। सो इसका मतलब क्या हुआ? नो एलिमेंट in A which is not in B। कोई भी ऐसा एलिमेंट A में नहीं है जो कि B में नहीं है। इट मीन्स every element of A is in कहाँ पे होगा? B में होगा। सो by definition of what? किसका डेफिनेशन? डेफिनेशन होगा सबसेट का। सबसेट का डेफिनेशन से क्या मिलेगा कि A जो है वो सबसेट होगा B का, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ A B में है। ठीक है, ये हम प्रूव कर दिए। सो हेंस क्या मिल गया? फर्स्ट इम्प्लाइज थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट। अब हम प्रूव करेंगे फर्स्ट इम्प्लाइज फोर। प्रूव कर देंगे फर्स्ट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज फोर, राइट? फर्स्ट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज फोर। तो फर्स्ट हमारा है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड हमको क्या करना है? इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज क्या है यहाँ? हमारा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो पहले हम चलते हैं इसको लेके और इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बी
एन आर्बिट्रेरी, इसका एलिमेंट लेके चलेंगे किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, एरी एलिमेंट ऑफ किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स करेगा ए इंटरसेक्शन बी में। इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स करेगा ए में एंड x बिलोंग्स करेगा बी में। इसका ऑब्वियसली मतलब हो गया x बिलोंग्स करेगा ए में। ठीक है, तो 10 क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, राइट। इक्वेशन नंबर, ऊपर क्या इक्वेशन दिए थे, 4 तक 5। चलिए अब हम क्या करते हैं कि ए से लेके चलते हैं, लेट x be an arbitrary element of a। x अगर a में है तो क्या होगा, तो हमारे पास दो कंडीशन होगा कि x b में होगा या नहीं होगा, राइट। x क्या होगा, b में होगा या नहीं होगा। तो यहां हमारे पास दो कंडीशन है, पहला x बिलोंग्स करेगा b में, ठीक है, या दूसरा x नहीं बिलोंग्स करेगा b में। लेकिन यहाँ x नहीं बिलोंग्स करेगा b में, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर x बिलोंग्स नहीं करेगा b में तो हमारा क्या होगा कि a जो है सबसेट नहीं होगा b में। a सबसेट है b का, समझे, तो b में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो तो a में ऑलरेडी नहीं, ठीक है। b में अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो a में नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि x आर्बिट्रेरी एलिमेंट है a का, तो इसका मतलब हमारा ये केस कभी होगा ही नहीं कि x बिलोंग्स नहीं करेगा b में, ठीक है। तो हमारा पहला केस फर्स्ट है x बिलोंग्स करेगा b में, राइट। अगर हमारा x बिलोंग्स करता है b में तो x बिलोंग्स टू a and x belongs to b, this implies x obviously belongs to a intersection b। Case second, x is not belongs to b। If x belongs to not belongs to b, then x also not belongs to a because a is subset of b। So this is not our case, not our case, ठीक है, ये हमारा केस ही नहीं होगा। तो हम क्या क्या प्रूफ कर लिए, 10 हमारा ए जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम 5 and 6 क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया कि ए बी का सबसेट हो तो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी।
राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं। राइट, हम लेके चलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है। अब हम लेके चलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ, सो एवरी एलिमेंट ऑफ every element of A is common between common element of A and B. A और B का कॉमन एलिमेंट, राइट। दिस मीन्स this is only possible if every element of A is in B, right? Every element of A is in B. So by definition of subset, सबसेट का डेफिनेशन क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज इन अनदर सेट देन ए इज सबसेट ऑफ बी. So thus A intersection B equal to A, this implies A subset of B. From above proof, can conclude that conclude कर सकते हैं कि हमारा conclude that हमारा क्या, हमारा चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है. फर्स्ट implies second, implies and implies third, implies and implies fourth, राइट. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको दिखाना है कि C माइनस बी जो है सबसेट है C माइनस ए का, अगर A जो है सबसेट है B का. चलिए उसके लिए क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ किसका, C माइनस बी का. तो x बिलोंग्स टू C माइनस बी में, दिस implies x belongs to C and x is not belongs to B, right? This implies x belongs to C and x is not belongs to A. क्यों? क्योंकि A जो है सबसेट है B का, A सबसेट है B का, तो B में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो A में नहीं ही होगा. इसका मतलब फिर से यहाँ से रिवर्स गए तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स कर रहा है C माइनस ए का, ठीक, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस. तो हम यहाँ प्रूफ कर दिए कि 10
thus any x belongs to c minus b, this implies x belongs to c minus a, right? Hence c minus b is subset of c minus a, राइट? तो हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो करना है कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो पहले लेके चलेंगे, हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ दैट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, फर्स्ट। ठीक। सेकेंड में प्रूफ करना है ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, ये सेकेंड। और फर्स्ट let x be an arbitrary element of a। तो यहाँ क्या होगा, दो ही कंडीशन हो सकता है। केस फर्स्ट, x बिलोंग्स टू b, x b में होगा। अगर x a में होगा एंड x बिलोंग्स टू b, दिस implies x must be belongs to a intersection b। This implies x must be belongs to a intersection b union a minus b। यही प्रूफ करना था, राइट? केस सेकंड में है क्या, कि x बिलोंग्स नहीं करेगा b में, x बिलोंग्स टू a एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b। दिस implies x must be belongs to a minus b। कहाँ से, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस। तो x must be belongs to a intersection b union a minus b। thus क्या हो गया कि हमारा जो है a जो है वो सबसेट हो गया किसका, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b का। ठीक है। अब हम लेके चलते हैं लेट x be an arbitrary element of a intersection b minus a minus b, सॉरी यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। तो यहाँ हमारा दो केस होगा, कौन कौन सा, कि या तो केस फर्स्ट, x बिलोंग्स करेगा a इंटरसेक्शन b।
ठीक है। x बिलोंग्स करेगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b में, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, दिस इम्प्लाइज x मस्ट भी बिलोंग्स टू a। केस सेकेंड होगा x बिलोंग्स टू a माइनस b में, x बिलोंग्स टू a माइनस b, इसका मतलब है कि x मस्ट भी बिलोंग्स करेगा a में एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब है x बिलोंग्स करेगा a में। दस दस क्या कि a इंटरसेक्शन b माइनस यूनियन a माइनस b इज सबसेट ऑफ व्हाट, ए। क्वेश्चन नंबर 2 मान लो और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। हो गया, काम खत्म फर्स्ट का। फॉर सेकेंड सेकेंड प्रूफ है, मैं इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, ठीक है। सेकेंड प्रूफ है कि हमको a यूनियन b माइनस a को लेके चलना है और ये प्रूफ करना है a यूनियन b। लेट x be an arbitrary element of a, क्या प्रूफ करना है, a यूनियन b माइनस a यूनियन b माइनस a। यहाँ पर केस फर्स्ट है होगा, केस फर्स्ट होगा x बिलोंग्स करेगा या तो इसमें या तो इसमें या दोनों में, तो एक ही बात हो गया, दोनों में कभी भी हो ही नहीं सकता। अगर दोनों में बिलोंग्स करेगा तो यहाँ पे अगर दोनों में बिलोंग्स करेगा तो b माइनस a में, a और b में बिलोंग्स करेगा, a में बिलोंग्स किया इसमें भी बिलोंग्स करेगा, तो इसका मतलब है कि b में है, b में है a में है, तो ये b में हो ही, b माइनस a में हो ही नहीं सकता। तो x बिलोंग्स करेगा a में, तो x belongs to a, this implies x belongs to a union b, right? केस सेकेंड ऑब्वियसली बिलोंग्स करेगा यूनियन के डिफिनेशन से, x बिलोंग्स करेगा b माइनस a में, ये थोड़ा कंप्लीट है। x बिलोंग्स करेगा b माइनस a में, इसका मतलब है x बिलोंग्स करेगा b में एंड x बिलोंग्स नहीं करेगा a में। इसका मतलब है कि x मस्ट बी बिलोंग्स टू a यूनियन b में, राइट। तो दस क्या हो गया, a यूनियन b माइनस a इज सबसेट ऑफ व्हाट, a एंड b का। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लेके चलते हैं
कि let x be an arbitrary एलिमेंट ऑफ इसका ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट कौन, एक्स। तो पहला केस होगा, केस फर्स्ट होगा कि एक्स जो है बिलोंग्स करेगा ए में, ठीक है। अगर एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए में, अगर एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए में, एक्स बिलोंग्स टू ए, राइट, दिस implies x belongs to A यूनियन B माइनस ए, ठीक है। केस सेकेंड, x बिलोंग्स कर रहा है किसमें, नहीं कर रहा, x बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए में, तो क्या होगा, तो x बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए में एंड x बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब हो गया क्या, क्या हो गया कि x जो है मस्ट बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। x बिलोंग्स टू बी, this implies x belongs to b and x not belongs to a, right, x not belongs to a, our case, so x is belongs to b minus a, right, this implies x must be belongs to a union b minus a, thus a union b subset of a union b minus a, equation number 4 from 3 and 4 को कंक्लूड करने के बाद हमको क्या मिलता है, जो कि प्रूव करना था, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए, यही तो हमको प्रूव करना था, हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको प्रूव करना है ये 7 का फर्स्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, हमको ये प्रूव करना, प्रूव दैट, ठीक है। तो हम LHS को लेके चलेंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, कहाँ से, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ऐसा किए, ए यूनियन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, राइट, क्यों, ए यूनियन ए इक्वल टू व्हाट, ए, दिस इक्वल टू ए, क्यों, क्योंकि ए जो है वो क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, राइट, सो every element of A is in A यूनियन B, A यूनियन B में
उसका सारा एलिमेंट है तो ए, सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कॉमन एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ किसका? ए एंड ए यूनियन बी का, राइट। इसको हम सेकेंड तरीका से ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड तरीका से प्रूव करेंगे कि कैसे, ये देखते हैं। हम जानते हैं, we know that A is सबसेट ऑफ A, राइट। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, एंड और क्या, A जो है अपने आप का सबसेट है और A इंटरसेक्शन भी, एंड A इंटरसेक्शन भी इंटरसेक्शन है, हाँ, A इंटरसेक्शन B जो है वो सबसेट होता है किसका? कोई भी सेट का, ए का भी बी का भी होता है। तो ए का लेते हैं, ठीक। सो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी सबसेट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट x be an arbitrary element in A में कोई x arbitrary element हो, then x must be an element of A यूनियन A इंटरसेक्शन B में। हो गई कि यूनियन की डेफिनेशन से, तो दस A इज सबसेट ऑफ क्या? A यूनियन A इंटरसेक्शन B। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, A इक्वल टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B, राइट। अब ये हो गया हमारा। अब हम सेकेंड का प्रूफ करेंगे। सेकेंड का प्रूफ यहाँ से ये ही स्टेप में, ठीक है। लेकिन हम फिर से दोबारा करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं। A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A, हमें क्या प्रूफ करना है? A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A हमको प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन कभी भी we know that इंटरसेक्शन जो है कभी भी क्या करता है? जिसका इंटरसेक्शन लेंगे, सेक्शन नेवर कंटेन
element which is not in set. In set. So if we take in, so A intersection A union B must be contained in A. Right? Equation number first. राइट, अब हम लेट कर लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू A any, let any x बिलोंग्स टू A। तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकता है, x A में होगा बट B में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। केस फर्स्ट, x belongs to B, x belongs to A and x belongs to B. This implies what? X belongs to A and x must be belongs to A union B. This implies x must be belongs to A intersection B, A union B. अब केस सेकेंड है, x B में नहीं होगा, x belongs to A and x is not belongs to B, right? तो भी x belongs to A and x belongs to A union B. This implies x belongs to A intersection A union B, right? So thus क्या प्रूव कर दिए कि A जो है वो सबसेट है A इंटरसेक्शन A यूनियन B का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड A इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें शो करना है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C हो तो B इक्वल टू C नहीं हो। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल टू लेट कर लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट है, B इक्वल टू लेट कर लेते हैं कि 2 5 9, राइट, एंड C इक्वल टू लेट कर लेते हैं 2 13, राइट। हियर let and here A intersection B इक्वल टू क्या है, 2 है, A इंटरसेक्शन C इक्वल टू 2 है, राइट। सो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, राइट, बट B is not equal to C, right? क्योंकि B में 259 है, C में 213, right? So
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है given that a intersection b a intersection x, given that क्या क्या दिया है, a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। a इंटर्स यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x, इक्वेशन सेकेंड। नाउ सो दैट क्या शो करना है हमको, a इक्वल टू b शो करना है। ठीक है, वी नो दैट a इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन x, अभी तुरंत ऊपर में प्रूव किए ऐसा। एंड b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b यूनियन x, अभी तुरंत जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन इसी को सॉल्व किए। ठीक है, अब हम बट a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x गिवन। गिवन है, सो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन what x, right, and b equal to b intersection a union x, right। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, लाइन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद हमको मिल जाएगा ए, दिस इम्प्लाई ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, राइट, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, एंड बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, राइट। हो गया, दिस implies a इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। क्यों, क्योंकि a इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5, समझे, एंड b इक्वल टू हमको मिल गया b इंटरसेक्शन a, राइट। अब दोनों को साथ करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b एंड b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, right, this implies a equal to a intersection b equal to b, right, this implies a equal to b, प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि find sets a b c such that a intersection b, b intersection c and a intersection c are non-empty, but a intersection b intersection
C इक्वल टू 5। तो ऐसा हमको सेट लेना है। उसके लिए क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं ए में कॉमन हो, ए का कॉमन बी के साथ, बी का कॉमन सी के साथ हो, सी का कॉमन ए के साथ हो, लेकिन तीनों का कॉमन नहीं हो। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। लेट कर लेते हैं, ए को ले लेते हैं 1 और 2, बी को ले लेते हैं क्या, इस दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो एक एलिमेंट इसका इसमें ले लेते हैं। तो 1 और 3 5, ठीक है। अब बी का भी कॉमन सी में होना चाहिए और सी और ए का भी कॉमन होना चाहिए। इसका भी एक कॉमन ले लेते हैं क्या, कि 2 कॉमन ले लेते 2, और इसका भी एक कॉमन ले लेते हैं 3, ठीक है। जो यहाँ पर कॉमन लिए वो नहीं लेते हैं, और 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1, 5 नहीं है। अब हम चेक कर रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या हो गया 3, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 2, वेट अरे 2, एंड नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या हो गया, तीनों में कोई भी कॉमन नहीं आया, इक्वल टू 5, राइट। We can take this example. Thank you for watching this video. If you like this video, then please subscribe.